Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, we will discuss about the types of water erosion and wind erosion. There are different type of these water and wind erosion, and we have discussed about these type of erosion, process, agent and मैकेनिज्म. तो ये लेक्चर पहले से अपलोड है, आप इनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके. रैनफेड एग्रीकल्चर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, लेक्चर उसमें अपलोड है. सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ दिस soil erosion, today we will discuss the different type of water erosion and wind erosion. When we talk about water erosion, and this erosion has different type, and maximum erosion is by water, by runoff water after rainfall. When there is a heavy rainfall or poor infiltration or poor water holding capacity, then water start flowing on soil surface, and this runoff water carry soil and it cause soil erosion. So the first type of water erosion is, जो पहला जो इरोजन होगा, बिल्कुल जो इरोजन जो स्टार्टिंग होगी वाटर इरोजन की, दैट इज नोन एज शीट इरोजन. शीट erosion. And in case of sheet erosion, what happens, suppose this is the field and rainfall is there and runoff water is on the soil surface, then this flowing runoff water carry the soil. So runoff water carry soil and then water is muddy. Muddy water नजर आएगा, भूरा नजर आएगा, because soil is dissolved in this runoff water. So this is rainfall and this is runoff, and this runoff water carry soil. So whenever there is a water on soil surface, it dissolves the soil and then there is removal of top soil. So this is the removal of top soil, and this top soil is fertile, and this is the uniform removal. The whole field, पूरे field में पूरी तरह से uniformly soil remove होती है, thin layer is removed, but this top layer is very fertile and this top layer is removed. It means fertility is declined, and in general this type of removal or erosion is ignored because there are no symptoms of erosion. तो top layer is removed, तो जो पूरा field का जो एक uniform layer remove हो जाती है, but this is very dangerous. Dangerous in the sense that the top fertile layer is waste, or we can say removed from the field. So definitely fertility and productivity is declined. So this is the first stage of erosion. So we should adopt the measures to check this type of erosion. So this is the erosion, sheet erosion, because uniform sheet, uniform layer of soil is removed. So that's why it is known as sheet इरोजन, एंड जनरली इट इज इग्नोर्ड. तो बहुत पहचान में भी नहीं आ पाता है, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कि ये शीट इरोजन हो गया है, क्योंकि पानी बहता रहता है और उस फ्लोइंग वाटर के साथ रन ऑफ वाटर सॉइल इज रिमूव्ड. अनदर टाइप और ना सेकेंड स्टेज, वी कैन से दिस इज द सेकेंड स्टेज. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज. जनरली इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन विच वन इज फर्स्ट और सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज इज रिल इरोजन. इन केस ऑफ रिल इरोजन, this stage comes after sheet erosion. Suppose this is a field and water is flowing from the field, and but the water make small channels. In this case, water is moving over the entire field with uniform removal of top sheet, top soil. But here water makes some channels along the slopes. So small channels are formed. So these are small channels, and दिस चैनल्स आर शैलो. डेप्थ इज शैलो. इससे जो वाटर मूव कर रहा है, देन वाटर मेक पाथ, स्मॉल चैनल्स, एंड देन कैरी सॉइल. सो दिस इज द सेकेंड स्टेज. आफ्टर द शीट इरोजन, वाटर मेक सम पाथ और चैनल्स, और उन चैनल से वाटर मूव करता है, एंड देन सॉइल मूव अलॉन्ग विद दिस वाटर. दिस इज नोन एज रिल इरोजन. सो इन केस ऑफ रिल इरोजन, स्मॉल चैनल्स आर फॉर्म्ड, और ये चैनल्स आपस में ज्वाइन भी हो जाती हैं, and depth is shallow. So this is second stage, that is rill erosion. And the third stage is advancement of rill. इस जो एडवांसमेंट है इसका, रिल का बड़ी हो जाती है, इनकी डेप्थ बढ़ जाती है, एंड इट इज नोन एज गली इरोजन. गली इरोजन. So in case of gully erosion, this is the advancement
ऑफ रिल दिस बिकम वाइड। तो ये जो वाइड होने लगती हैं, चैनल्स बड़ी हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं, डीप हो जाती हैं, और देन वाटर वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू रिल इरोजन। तो रिल इरोजन में बहुत छोटी छोटी चैनल्स खेत पे से निकलती हैं, बट इन केस ऑफ गली इरोजन दीज रिल become wide and deep and carry huge amount of water as well as soil. So here the soil erosion is more, and this is the third stage, or we can say this is the advancement of rill erosion. तो जो पहले टाइप का होगा यूनिफॉर्म लेयर रिमूवल होगा, सेकंड में स्मॉल चैनल्स आर फॉर्म, एंड थर्ड स्टेज वाइड and deep channels are formed. So in case of rill and gully, channelization is there, channel formation is there. तो यहाँ वाटर जो है चैनल्स बनाता है, along the slope मूव करता है, और जितना ज़्यादा स्लोप होगा रन ऑफ velocity is more and it cause more erosion. So this is the problem in rill and gully erosion, and it increases with the slope. तो स्लोपी लैंड में ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. And the fourth stage of this water erosion is ravines, formation of ravine. Ravine is the advanced stage of गली. तो देखिए पहले क्या हुआ, पानी बहा, ऊपर से निकला, खेत के ऊपर से निकला, और जब खेत के ऊपर से बह रहा है तो सॉइल को भी अपने साथ रिमूव कर दिया. थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ तो छोटी छोटी चैनल्स बन गई, रास्ता बना लिया पानी ने, लेयर्स तो रिमूव हुई, उसके बाद चैनल्स बना ली, दैट इज रिल. देन रिल और बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, गहरी हो गई, दैट इज गली. Then further advancement, it is the fourth stage. It is fourth stage of water erosion. Ravine formation is there. अब ये जो बनी है फॉर्मेशन, जो बनी है फील्ड बनी है, ये बहुत वाइड हो जाती हैं, बहुत ब्रॉड हो जाती हैं. तो इतनी ब्रॉड हो जाती है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं. यहाँ पे कह सकते हैं नॉन, इट इज नॉट चैनल. ये चैनल अब नहीं रहा, चैनलेशन नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, सॉइल मास अलग हो जाता है, और इसके बीच में से इतनी वाइड है, वन कैन मूव ईजिली. कोई बस ट्रक आराम से मूव कर सकती है, वाइड बन जाती हैं, और ये इतना वाइड रहती हैं कि ऐसा लगता है कि दो सॉइल के या दो फील्ड अलग अलग हो गए हैं, और ये बहुत वाइड हो जाती हैं. एंड देन वाटर मूव थ्रू दिस पाथ. तो एक तरह से एक रास्ता बन जाता है, सड़क की चौड़ाई के बराबर चौड़ी हो जाती हैं, जितनी चौड़ी सड़कें होती हैं उतने चौड़े चौड़े हो जाते हैं. तो दिस इज द लास्ट स्टेज, रेविन फॉर्मेशन. तो ये बहुत एडवांस स्टेज है रेविन की, और इसमें सॉइल इज टोटली डिग्रेडेड. तो इसमें बहुत डिग्रेडेशन हो जाता है. अब इस सॉइल को रिक्लेमेशन करना या इसका फर्टिलिटी को रिस्टोर करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ एक तो रास्ता, मतलब जो पहले फील्ड था, पहले छोटी छोटी चैनल्स बनी, बड़ी चैनल्स बनी, अब चैनल्स इतनी बड़ी बन गई हैं कि एक रास्ता टाइप का बन गया है, ब्लॉक्स बन जाते हैं फील्ड के, सॉइल के ब्लॉक्स बन जाते हैं, एंड वन कैन मूव ईजिली. बहुत गहरे हो जाते हैं, गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं. तो ऐसा लगता है कि कई सारे फील्ड हैं, उसके बीच में कई सारे गड्ढे बन गए हैं. सो दिस इज दी ravine formation, and it is the last stage of water erosion. And other type in hill slope, when slope is more in hilly area, landslide is there. Landslide भी जो water erosion का ही part है, लेकिन वो इसका advancement या इसकी सीरीज में नहीं है. This is the series sheet, rill, gully and ravine. So this series में भी asked in any examination कि स्टार्टिंग से लगाइए कि कौन सा स्टार्ट होता है. तो जो सबसे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है दैट इज रेविन फॉर्मेशन. लैंडस्लाइड अलग तरह का इरोजन है, नो डाउट इट इज ड्यू टू रेनफॉल, और हिली एरिया में होगा जहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा होता है. और वाटर इरोजन से जो रिवर बैंक्स हैं या जो स्ट्रीम्स हैं उसके किनारे पे भी इरोजन होता है, वाटर उसको काटता है, साइड्स को काटता है, विद उसमें वेलोसिटीज के थ्रू मूव करता है, उसको वेव इरोजन भी जिसे हम कहते हैं. एक लेक्चर इज ऑलरेडी अपलोड regarding wind erosion, water erosion and wave erosion. So stream bank erosion is also there, but it is not the part of this. No doubt there is a erosion, but not the part of this type of erosion. तो river bank erosion भी है, जो नदी के किनारे रहता है, नदी का पानी इसको काट देता है और सॉइल जो है इरोड कर जाती है. लेकिन इन फील्ड दीज आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाटर इरोजन. तो ये हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से वाटर इरोजन है. Now another is wind erosion, and type of wind erosion, there are 3 types of wind erosion. Actually wind strike the soil particles and then remove the soil particles. So hitting is there. So moving wind has action kinetic energy and then hit the soil and then remove the soil from the field. So this is known as wind erosion. So important one, there are 3 type of wind erosion.
First one is, or we can say it is the first stage, that is saltation. So in case of saltation, suppose this is the field, soil field, and wind is moving from this to this direction, then this wind make pressure or hit the soil particles, and suppose it is hitting this soil particles. So there are different type of soil particles, light particles, medium particles and heavy particles. So and all type of particles impact is different. तो सारे पार्टिकल पे एक जैसा इम्पैक्ट नहीं होता, सब पार्टिकल पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज एंड वेट. So in case of saltation, so suppose it is a soil particle and it hit this particle, and this particle jump into the air, move into the air and then come on soil surface. Suppose it is soil surface, okay. Then again it move into the air and come on soil surface. So jumping action is there. Jumping action or bouncing action is there. And this soil particles, wind strike the particle and it blown up into the air and come into the air. Soil में आ जाता, एयर में आता है, उसको विंड हिट करती है, उससे जंपिंग होती है, उड़ करके हवा में आता है, देन कम अगेन ऑन सॉइल सर्फेस, देन अगेन कम जंपिंग इज देयर. तो उछल उछल के चलता है, जंप कर करके चलता है. तो पार्टिकल्स जंपिंग चल रही है, जंप करके इधर आया है, इस तरह से चल रहा है. तो नाउ सॉइल पार्टिकल्स मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. तो ये एक मैंने आपको पार्टिकल का बताया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्टेशन. अभी क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो हाइट है, ये करीब 30 to 60 सेंटीमीटर, अबाउट 30 to 60 सेंटीमीटर इट कैन मूव इनटू द एयर. 1 to 2 फीट हम कह सकते हैं, इट कैन कम इनटू द एयर. तो सॉइल की सरफेस से 1 से 2 फीट ऊपर तक आ जाता है और हवा के साथ फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है. तो इसका देखिए हिटिंग कर रहा है, तो नाउ विंड इज पावरफुल फॉर मेकिंग इट्स जंपिंग. तो इतना भारी भी नहीं है कि जंपिंग नहीं हो पा रही हो, लेकिन इतना हल्का भी नहीं है कि ये एयर में रिटेन कर जाए, तो ये फिर नीचे आ जाता है. इट मीन्स इट इज मीडियम साइज. It is medium size or medium weight particle, and the size is about 0.1 millimeter to 0.5 millimeter के साइज पार्टिकल रहता है. इतने साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर इरोडेड थ्रू साल्टेशन प्रोसेस. So saltation is a jumping process, bouncing process. So but most of the soil is eroded through this method or this type, and about 50 to 75% soil is eroded through saltation. So this is saltation process. Another is surface creep. In case of surface creep, particles roll on the soil surface. They do not jump into the air. वो एयर में नहीं आते, लेकिन सरफेस पे रोल करते हैं. तो इन केस ऑफ सरफेस क्रीपिंग, रोलिंग इज देयर. जैसे फुटबॉल को हम करें, तो फुटबॉल जैसे जमीन पर लुढ़कती हुई चलती है, या कोई गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई चलती है, सिमिलरली पार्टिकल्स मूव ऑन सॉइल सरफेस थ्रू रोलिंग एक्शन. सपोज इट इज पार्टिकल एंड देन विंड इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस पार्टिकल, बट दिस पार्टिकल इज हैवी, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट कम इनटू द एयर. ये पार्टिकल भारी होता है, इस कारण से एयर में नहीं आ पाता है, बट विंड मेक प्रेशर और फोर्स ऑन दिस, देन इट स्टार्ट टू रोलिंग. तो ये स्टार्ट कर देता है रोलिंग, इस तरह से घूमना शुरू कर देता है, जिस तरह से साइकिल के पहिए घूमना शुरू करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे फुटबॉल को हम लुढ़का देते हैं तो जमीन पर लुढ़कती हुई चलती है. सिमिलरली दिस पार्टिकल इन मूविंग दिस वे, मूव करते हुआ चलता है इस तरफ को. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सरफेस क्रीप. बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस surface creep only occur in heavy particles, not in light or medium particle, and particle size is more than 0.5 millimeter. तो जिन सॉइल में हैवी पार्टिकल्स हैं, सैंड है, वहां कौन सा एक्शन होगा? रोलिंग एक्शन के थ्रू सॉइल मूव करेगी. एंड दिस रोलिंग एक्शन इज नॉट फॉर क्वाइट लॉन्ग, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता है, तो सॉइल से थोड़ी दूर तक ही इरोड हो पाती है. लेकिन सैंड के पार्टिकल्स इसी की तरह मूव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर जाते हैं, जिससे कि सैंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है, एंड देन सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी इज रिड्यूस. तो वहां धीरे धीरे सैंड का एक्युमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज, एंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेड इज अबाउट
5 to 25%. Only 5 to 25% soil is transported or eroded through surface creep. So maximum quantity is eroded by saltation process. And third one is suspension. In case of suspension, very small particles come into the air and they float into the air. So here floating action is occur. हवा में आके घूमने लगते हैं पार्टिकल्स, सस्पेंशन बनाते हैं, एंड पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, लेस देन 0.1 mm. सो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. व्हेन विंड स्ट्राइक ऑन पार्टिकल्स दे कम इनटू द एयर, एंड सिंस दीज आर लाइट पार्टिकल्स दैट्स व्हाई दे कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस. तो जैसे ही सॉइल एयर इस पे स्ट्राइक करती है, पार्टिकल्स बहुत लाइट होते हैं, कम वेट होता है, एयर में आ जाते हैं, और इस एयर में आने के बाद ये मूव करने लगते हैं. एयर में आए, मान लीजिए इस पार्टिकल एयर में आ गया, और नाउ ये मूव करने लगेगा विद ब्लोइंग विंड इन विंड डायरेक्शन. तो अब ये नीचे नहीं आएगा. यदि ये मीडियम पार्टिकल होता देन दे कम ऑन द सॉइल सरफेस बिकॉज ऑफ वेट, बट द पार्टिकल साइज इज स्मॉल, वेट इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई दे रिमेन इन एयर एंड मेक ए सस्पेंशन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सस्पेंशन टाइप इरोजन. एंड दे कैन ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत हल्के हैं, तो जहां तक हवा जाती है वो हवा के साथ मूव कर जाते हैं, हजारों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक दे कैन ट्रेवल डिस्टेंस. बट द क्वांटिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन इज वेरी लेस. इट इज अबाउट 3 to 4%. So in all these three type, maximum erosion by saltation and it is of medium particles. Then surface creep, it is for heavy particles, and for light particles it is suspension type and quantity is only 3 to 4%. So these are three. तो जो suspension है इसकी क्वांटिटी भले ही कम है बट इट कैन ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस. और साल्टेशन में देखिए मीडियम साइज के पार्टिकल्स मूव करते हैं और काफ़ी दूरी ये भी ट्रेवल कर लेते हैं. और ये जो सरफेस क्रीप है ये पर्टिकुलरली सैंड के केस में होता है, क्योंकि सैंड हैवी पार्टिकल्स है, सैंड का फ्लोटिंग एक्शन नहीं होता है, एयर में नहीं आते हैं, मूव नहीं करते एयर के साथ. और साल्टेशन में मीडियम साइज के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. सो ऑल दीज थ्री प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन विंड इरोजन. तो ये हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन. And third one is wave erosion. Wave is combined action of wind and water. तो ये जनरली कहाँ होता है, जहाँ रिवर बैंक्स के किनारे होते हैं, जहाँ एयर भी एक्शन कर रही है और वाटर का भी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू एक्शन हो रहा है और बैंक को काट रही है और सैंड का मूवमेंट हो रहा है. या सी शोर्स में होता है, नदियों किनारे, समुद्र किनारे हवा का भी इम्पैक्ट रहता है, जिससे सैंड उड़ती चली जाती है दूर तक और सैंड स्प्रेड कर जाती है, और फर्टाइल लैंड पर सैंड स्प्रेड करने से फिर उसकी फर्टिलिटी पुअर हो जाती है. So these are three type of water and wind erosion. इस लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.